Footfalls echo in the memory. Down the passage we did not take. Towards the door we never opened into the rose garden. Lost opportunities, lost possibilities, feelings we can never get back. That's part of what it means to be alive. But inside our heads, at least that's where you imagine it, there's a little room where we store those memories. A room like a stack of books in a library. And to understand the workings of our own heart, we have to keep making on new reference cards. Time flies, but in our mind, a thought occurs every time. If not this, then what? We wish if there was something that could take people back to all the things that they wished that they had done and all things that they wish they could be. What's the world of reality has its limits, but the world of imagination is boundless. So let's recreate our missed opportunities and missed chances and explore. अगर ये ना होता तो क्या होता? हमें और जीने की चाहत न होती रे तू, अगर तुम न होती, अगर तुम, तो यहाँ से हम Right. So, good evening, everyone, once again, and a very warm welcome to Mo TV. As you all know, I'm Ritu, and coming on to today's program, बहुत ही interesting topic है चाय पे चर्चा. So, जो topic हमने निकाला है, I don't know if you have been able to, read the drumming up that was sent to you, and I hope all of you have understood and prepared your stories accordingly, because आपको पता है चाय पे चर्चा पे मैं कम बोलती हूँ और आप लोग ज़्यादा बोलते हैं. So आज भी सब अपनी स्टोरीज बोले. So जैसे मैंने कहा कि अगर ये ना होता तो क्या होता. So जैसे हम इमोहा में हम लोग कहते हैं अगर कोविड ना होता तो हम लोग सब यहाँ ना होते, अगर कोविड ना आता तो क्या हम सारे यहाँ होते, राइट. सो सिमिलरली आप सबकी जो ये स्टोरीज हैं आज हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे सुनेंगे. सो एनीबडी हु वांट्स टू गो फर्स्ट? Ritu, हाँ जी. you know, I was a chain smoker after my commissioning after 21 years of age. And for Right. about 20 years, I continued to at least 4 पैकेट डेली का स्मोक होता था मेरा. और उसके बाद मैंने अचानक बंद कर दिया. तो मैं ये सोचा था कि अगर मैं ये सिगरेट वगैरह ना पीता और ये आदत ना होती तो probably I would have had a beautiful house, a beautiful car, and really enjoyed the money with me. आज तो मैं बिल्कुल विदाउट एनी मनी बैकअप के तौर पे बैठा हूँ. तो कहने का मतलब इंसान को गंदी आदत तो बहुत जल्दी मिल जाती है और अच्छी आदत जब उसे रियलाइज होती है तब तक वो टाइम नहीं होता, वो टाइम निकल गया होता है. तो यू आर नॉट बीन एबल टू सेव द मनी फॉर द टाइम व्हेन यू रियली नीडेड इट. आपने ये आदत छोड़ी जबकि आप 4 पैक्स ले रहे थे. ये आदत छोड़ना इतना इजी नहीं है, बट येट यू टुक अ डिसीजन ऑन इट, एंड व्हिचएवर टाइम यू लेफ्ट इट, मे बी स्लोली और स्टेडीली और मे बी इन अ डे. टिपिकल लाइक फौजी लाइक यही सुनते हैं कि जिस दिन डिसाइड कर लिया उस दिन हम छोड़ देते हैं बस, चाहे जितनी भी आदत लगी होती है. सो देर सवेर एटलीस्ट यू डिड व्हाट वाज द राइट थिंग. Ritu, can I say something? हाँ जी प्रवीण जी. मेरे साथ ऐसे है कि I was very brilliant student throughout my school and colleges, and also an athlete, and also a singer, also a music person, and also I used to take part in dramas, like all-rounder you can say. And I was given an award from Punjab University for the best instrumentalist in the Punjab.
So after that, I got, just when I finished my MA, I got married. And you know, the marriage in my family, they were hardly any music lover. Nobody loved. So धीरे धीरे वो छूटता गया. But of course, even my principal and my college professor came to my husband कि इसकी आप छुड़वाना मत. And even then, उसके बाद ये देबू चौधरी वगैरह भी हमें मिले. And he offered me, after, you can say, when my child was in class 5 or 6, he offered me कि आप मेरे पास faculty, he was a dean at that time in Delhi University. He offered me कि आप आ जाओ, मैं आपको PhD वगैरह करवा दूंगा. And I started also with tabla लेके दोबारा से I started calling double G and all. But suddenly, you know, my mother-in-law was diagnosed as a cancer patient. So all our, you know, again switched over to her, and सारी family का वो first time नया तब cancer सुना था, बहुत घबराहट हो गई, and सब कुछ छूट गया मेरा. और उसके बाद I was not able to do my PhD or, you know, continue with my sitar. So that is one thing, it is always pinching me in my heart that if I would have done, I would have been a professor in the college, or must be doing something good and would have retired as a senior professor or whatever. Because it was my dream to become a professor, which was never filled. Ab to khair kya hoga. This was my desire all throughout my life. So this is what I wanted to share. Wonderful, in fact. But आप अभी भी कर सकती हैं, आपका जो पैशन है, आप अभी भी वापस जा सकती हैं. प्रोफेसर नहीं, बट आप मतलब सिखा जरूर सकती हैं बहुत सारे लोगों को. एंड ऑफ कोर्स ये प्लेटफॉर्म तो है ही. So, but क्या है कि मेरी लाइफ अब ऐसी हो गई है कि I'm 6 months here, 6 months with my children. तो वो कोऑर्डिनेशन बिठाना भी बड़ा अभी, I mean maybe in near future maybe, और अभी थोड़ा मुश्किल ही हो रहा है. Because मैंने सीखा तो 13-14 साल, लेकिन छोड़े हुए मुझे 40 साल हो गए हैं. So you know that gap is too much. So maybe one day I'm trying again to build up my confidence. This is what my story is. You can teach online. Online you can teach nowadays. Yeah, but Mrs. Bhattacharya, पहले I have to come on that line ना. I have to again अपने आप आ जाएगा, थोड़ा आता है. ऐसा नहीं है कि वो तो है, हाथों में भी है. अभी उस दिन सितार पकड़ा तो बजा रही थी मैं अपना, ऐसा नहीं है. लेकिन वो फ्लो और उसका प्रैक्टिस चाहिए, फ्लो करने के लिए चाहिए सब. It will come, I know. बिल्कुल धीरे सब आएगा. Short story for you. जी भीषण जी. At the age of 18, I went to England for my education, and I did mechanical engineering. I started with that, and I used to do very well in every subject, but I could never handle engineering drawing, because we did BSc and we never learned drawing. So it was a problem. I'd end up failing I'd lose my scholarship. So we met at a pub one evening, my friends and I, and somebody said, why don't you switch to electrical engineering? You only have 1 year's drawing, you can get through that quite easy. So somebody said, he's not going to change that. Bet him 5 pints of beer, he'll not do it. And I said, done, taken. I took him, bet 5 pints of beer. I changed to electrical engineering and had a successful career, and this is where I am today. Just over a bet. How life changes overnight. The career changes. Absolutely. That's how it So was. that was Lovely, right. lovely. So what is something that you feel that you missed out on? I think I did the right thing. I missed out on nothing. I took the right career because it blended with the welding technology I was involved in design. So it blended beautifully. Mechanical was the wrong career I was in anyway. And I don't know why I took it. Those days we were young, we didn't know Wonderful. which stream to take. Yes. नहीं, मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि मैं शुरू से ही जैसे जैक ऑफ ऑल, मतलब ऑल राउंडर थी. जिसमें भी जाती थी, पेंटिंग सीखने गई तो मेरी टीचर बोलती थी, यू हैव अ वेरी गुड हैंड, यू शुड परस्यू इट. तो
फिर मेरी जो ब्यूटिशियन का कोर्स करने गई तो उसने भी बोला यू शुड हैव योर ओन दिस थिंग सलून ब्यूटी पार्लर, यू शुड ओपन, यू हैव वेरी गुड हैंड, दिस दैट। पर मेरा जो उसको नई अपॉर्चुनिटी को मैंने नहीं पिक किया, थोड़ी इधर उधर हर चीज सीखने के उसमें ना, ये भी सीख लूँ वो भी सीख लूँ वो भी। फिर मैंने जब एग्जाम ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूपीएससी क्लियर कर लिया, तो फर्स्ट 100 में आई गॉट द रैंक, तो मुझे मिनिस्ट्री भी मिली, मिनिस्ट्री में जॉब मिल गई, मतलब बड़ी इजीली मिल गई घर में बैठे हुए। लेकिन जब मेरी मैरिज के टाइम में मेरे इन लॉज का ये था कि हमें ना लड़की जो चाहिए वो जॉब वाली नहीं चाहिए, तो उसमें मतलब मैं इतना सीरियसली लिया नहीं कभी। तो अब मेरे को लगता है कि अगर मैं सोचा होता, मेरे को मिनिस्ट्री में जॉब थी, मैंने जॉब छोड़ दी 2 साल के बाद। तो अभी मैं अगर कर रही होती तो अभी तो मैं किस पोस्ट पे रिटायर हुई होती, तो कितनी फैसिलिटीज सब कुछ होता, तो वो थोड़ा सीरियस होती है अगर तो ये really amazing कि तो अभी अगर मेरे को दोबारा चांस मिलेगा ना लाइफ का, तो मिस्टर बावरी आपका झगड़ा नहीं होता तो? हाँ जी, आपका झगड़ा नहीं होता कि मेरी जॉब छुड़वा दी है? नहीं, ऐसे उन्होंने बोल दिया था, मेरे फादर इन लॉ ने पहले बोल दिया था। मैं जब पुरी साहब इनके बॉस के पास मिलने जाता था तो वो मेरे को गालियां निकालता था। मैंने पहला फुलिश आदमी देखा है जो गवर्नमेंट जॉब अपनी वाइफ की छुड़ा रहा है। एग्जैक्टली वही मैं हैरान हो रहा हूँ। तो वो क्या था कि मेरी पोस्टिंग मेरठ में थी, तो मैंने कहा कैसे करूंगा, कहता मैं तेरी जो जॉब है मैं दिल्ली में ट्रांसफर करा लूंगा, तो चुप हो जा। मैंने कहा जी आप करा दो तो मैं रेडी हूँ, पर आप करा नहीं पाओगे, ये जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं ये बिल्कुल बॉदर नहीं करती है। तो फिर ऐसा ही हुआ, उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं इसको 1 साल इसको छुट्टी में रखा। उसने 1 साल की जॉब थी, 1 साल की जॉब थी, 1 साल की छुट्टी मिल गई। फिर उसके बाद मैं क्या कहता यार मैं रियली तुम लोगों का कुछ नहीं कर सकता, तुम यू बेटर रिजाइन। नहीं एक्चुअली दिल्ली में नहीं थे ना, बाहर थे, यहाँ होते तो फिर भी सोचती मैं। Everybody would tell you, starting from your parents to the society, that family comes first. Your husband, your same. So हमारे में जैसे लड़कियां कैरियर बनाने में लगी है ना, हम लोग इतने हमारा क्योंकि नहीं हमारा कोई ऐसा एम्बिशन भी नहीं था। पहले हमने फैमिली को इम्पोर्टेंस दी, हमने कैरियर को छोड़ दिया उसके लिए। हमारे में भी उतना नहीं था कि हम अपने कैरियर के लिए लड़े, लेकिन वो करना चाहिए था। रितु जी मैं 9 साल का था 1958 में। तो श्रीलंका में हम इंडिया आ चुके थे, पर वो श्रीलंका में नाना जी ने बुलाया तो हम गए। तो जैसे ही वहां पे पार्टी शुरू होती थी, विजय गाना सुना, तो सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जा, तो ये गाना मैं गाता था। पर ये किसी ने नहीं सोचा कि इस आदमी में कुछ टैलेंट गाने का है, तो इसको आगे बढ़ाया जाए। तो 64 में डिवैल्यूएशन हुआ। आई वाज फ्रॉम ए बिजनेस फैमिली, मेरे फादर बिजनेस करते थे एक्सपोर्ट का, तो इनको बहुत नुकसान हुआ। तो हम लोग उसमें आ चुके थे, हायर सेकेंडरी पास करके कॉलेजेस में आ चुके थे। तो ये सोचा कि अब कोई और चारा नहीं है, जॉब ही करनी है। तो म्यूजिक का जो एक तरफ पड़ गया और जॉब में आ गए। जॉब में आए तो एक कंपनी मिल गई, साराभाई केमिकल। उसमें जो बॉसेस थे वो मेरे को इतना प्यार करते थे, इतना मेरे को लाइक करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन आगे प्रमोशन के लिए उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा कि ये क्यों होता है। तो लोग जो चमचागिरी करते थे उनकी प्रमोशन हो जाती थी। तो मैंने कहा ये नहीं करना लाइफ में, कभी चमचागिरी नहीं करना। फिर मैं एक एसोसिएशन बनाई, उसमें मैं बना नॉर्थ इंडिया कोऑर्डिनेटर। तो फिर मैं उसमें चला गया। फिर मैं जिस किसी को प्रॉब्लम होती थी उसके लिए मैं प्रॉब्लम सॉल्वर के लिए जाना जाता था। तो एक दिन कोई साउथ इंडियन आया, उसने कहा मिस्टर भामरे यू हैव गॉट ग्रेट पोटेंशियल, व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर promotional job and all that. I said I'm interested but without any chamchagiri. He says no, I am there to help you. तो उसने मेरे को पहले रीजनल मैनेजर बनाया, उसके बाद नॉर्थ इंडिया मैनेजर बनाया। तो लेकिन तब तक हमारी रिटायरमेंट आ गई और तो आई रिमेन नॉर्थ इंडिया मैनेजर फॉर 5 years। तो रिग्रेट यही है कि जो आदमी प्रोफेशन में ज्वाइन करता है उसको सेल्फिश जरूर होना चाहिए। आई वाज नॉट सेल्फिश। क्या बात है, क्या बात, वेरी गुड। हमारा रिग्रेट ये है
कि भाई आप लोग जो थे हैं देखते हैं रोज रोज हमको कहते हैं अच्छी गाती हो गाती, मगर जो हमारे पापा ने हम लोग को स्टेज पे नहीं जाने दिया। अगर हम स्टेज पे जाते तो आगे आगे बढ़ते जाते। किसी ने हाँ बिल्कुल ठीक है, किसी ने हमको किसी ने ना देखा, एक आदमी पुश तो करने वाला चाहिए, तो किसी ने जाना नहीं। फिर पति ऐसे मिले तो ही वो मतलब सब कुछ ठीक था, बट ही वाज नॉट सो कीन कि हम आई शुड गो इन पार्टीज एंड ऑल, यू नो। हम पार्टी की जान हो जाते थे, वो बेजान हो जाते थे। जैसे आप यहाँ पर हैं बिल्कुल। ठीक, उनका फ्रीज हो गया है। मिंदर जी यू आर ऑन म्यूट, यू विल हैव टू। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मेरे पेरेंट्स भी थोड़े से मतलब कि उन्होंने एजुकेशन तो हम सभी भाई बहनों को बहुत अच्छा एजुकेट किया, लेकिन वो जॉब वगैरह की बिल्कुल फेवर में नहीं होते थे। मेरी भाभी वगैरह किसी को जॉब नहीं करवाई, मैं घर में सबसे यंगेस्ट थी। तो मैंने जो बीएससी होम साइंस किया था 4 इयर्स का डिग्री कोर्स, और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन डायटेटिक्स किया। लेकिन मेरे को जब अप्रैल 77 में मेरे एग्जाम हुए, 1 अप्रैल को हमारी मैरिज हुई है, और जून में मेरे को ऑफर आई राजकोट से कॉलेज की तरफ से ही एज अ डाइटिशियन की, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉस्पिटल था राजकोट में। लेकिन मेरे पेरेंट्स भी नहीं बिलीव कर रहे थे, ना मेरे इन-लॉज, तो मैंने किया नहीं। यहाँ पर भी दिल्ली में भी सफदरजंग वगैरह हमने ट्राई किया, लेकिन मेरे हस्बैंड चाहते थे, लेकिन मेरे इन-लॉज बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं जॉब करूं 6, क्योंकि डाइटिशियन की हॉस्पिटल में जॉब होती थी 6 to 2 और 2 to 10 ऐसे शिफ्टिंग में होती थी, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। फिर मैंने आफ्टर मैरिज नर्सिंग, वो कहते टीचिंग लाइन में जाओ, देन आई हैव डन नर्सरी कोर्स किया, बीएड किया, एंड आई जॉइन द स्कूल। और मैं स्कूल में एज अ टीचर बिल्कुल अपना कैरियर छोड़ के और एक मैथ्स और साइंस वगैरह पढ़ाने लगी। तो कभी ऐसे मैंने सोचा ही नहीं, कोई रिग्रेशन वगैरह भी ऐसा भी कोई खास नहीं हुआ। लेकिन मेरा बेटा जब वो पीएचडी करके यूएसए से एक दिन आया, तो उसने एक दिन मेरे को क्वेश्चन किया कि मम्मी आपको कभी महसूस नहीं होता है कि आप अपना कैरियर छोड़ के अगर आप वहां पर होते तो आज कहाँ के कहाँ आप होते। तब मैंने बेटे को ये जवाब दिया कि हो सकता है बेटा, अगर मैंने डाइटिशियन का वो जॉब ली होती तो आज आप जिस जगह पे पहुंचे हो, मैं हो सकता है आपको ध्यान ना दे पाई होती, तो आज जहां पर पहुंचे हो तो आप ना होते। इसलिए मेरे को कोई रिग्रेशन नहीं है। आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने अपने दोनों बच्चों को एक अच्छे जगह पे पहुंचा दिया है। पर कभी कभी अंदर दिल में जरूर होता है कि मैंने मैं अगर वो जॉब लेती तो आज मैं कुछ और ही होती। क्या बात है। ब्यूटीफुली सेड मिंदर जी, वेरी ब्यूटीफुली पुट। एंड बिल्कुल सही कहा आपने कि हम बच्चों के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करते हैं। एंड ठीक है, बट ये अंदर जो एक कसक रह जाती अंदर, है, हाँ, आज उन्हीं की बातें हो रही हैं, क्योंकि हम चाहे कुछ भी करें, वी कीप, हाँ जी, हम जस्टिफाई करते रहते हैं, स्पेशली एज लेडीज, कि हमने ये करा, हमने सका, तो कोई बात नहीं है, हमारे बच्चे ठीक है, हस्बैंड ठीक है, नॉट, बट अंदर जो कसक है वो जरूर रह जाती है। सो बिकॉज हम लोग बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करते हैं। सो मिसेस वैद, आपसे ये सेम क्वेश्चन। मिस्टर वैद, I love the fact that जब भी मिस्टर मिसेस वैद को क्वेश्चन पूछो, तो फर्स्ट थिंग दैट दे बोथ डू इज दैट दे लुक एट ईच अदर कि अब हमें क्या जवाब देना। एंड देन दे सी ओके कौन बोलेगा अभी। सो मिस वैद, नहीं आप बोलना। एंड मिसेस वैद को आगे नहीं करना आपने। I have been landlubber, marine engineer all the time, almost 37. Once my ship went to Canada, the port called by name Tampa. There one surveyor had come to survey our vessel, so I had to be with him. Any question he asked regarding machinery, he was so much impressed. He said, "How much this company is paying you?" I said, $3,000 per month. He said, "I'll give you $5,000. Come and assist me." उस वक्त मैंने बड़ी मुश्किल से अंबाला से घर छोड़ के दिल्ली सेटल हुआ था। मुझे लगा मैं दिल्ली छोड़ के कनाडा में सेटल हो जाऊं, तो I did not have that courage to accept that job. Had I accepted that job at that time,
I think my whole family would have been in a better place. Over. Thank you. तो Very हम कैसे मिलते हैं मिस्टर वैद्य आपको? पहले तो मिसेस आप वैद, हमें भी मिलते हैं ना? मिसेस वैद आज आप बहुत ही अच्छे से बिल्कुल फेस्टिव उसमें तैयार हुए हो, so looking very nice and thank you. So मिसेस वैद आपके मन में क्या है? मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। बिल्कुल आपके साथ मिस्टर वैद है तो सेटिस्फाइड है, बिल्कुल। You have No to see regrets, Mrs. no Vaid regrets. to understand. नहीं, मिसेस वैद को एक्चुअली देखना चाहिए। टिल मिस्टर वैद इज नेक्स्ट टू हर, शी इज परफेक्टली फाइन। बस हम लोग मूवी भी जब देखते हैं तो मिसेस वैद मूवी कम देखते हैं, मिस्टर वैद को ज्यादा देखती हैं अभी भी, So very very sweet relationship that they have, beautiful, and I hope you both remain very happy like that always. फिर उसके बाद होम साइंस की ट्रेनिंग करी। हाँ सुन, इधर लिसनिंग। बोलो, इधर लिसनिंग। पहले टीचर ट्रेनिंग करी, फिर उसके बाद होम साइंस की ट्रेनिंग करी, फिर उसके बाद मैंने जॉब शुरू करी एज ए टीचर। राइट। हाँ जी। वेरी गुड। शेयर करूंगी, आपने मुझे कभी बताई थी ये बात। So इनका इतना beautiful सा वो है, and Mr. Vaid is also as much in awe of Mrs. Vaid as Mrs. Vaid is in awe of Mr. Vaid. And अभी भी उनके बीच में जो एक वो होता है ना, no matter how many years of marriage have passed by, but they still are as much in love they were, I think probably the beginning. तो मुझे Mrs. Vaid ने एक स्टोरी बताई थी कि जब इनकी नई नई शादी हुई, Mrs. Vaid was so beautiful that जब ये निकलते थे कहीं पे भी, तब ओपन जैसे रिक्शास वगैरह होती थी या ऐसे कुछ होता था, तो सारे गली के लोग बाहर आ जाते थे to see Mrs. Vaid, and Mr. Vaid used to feel so proud about it, and वो मतलब उतना ही ज्यादा आगे पीछे जाते थे so that like everybody could see that Mrs. Vaid is his wife, so ये बहुत ही sweet story उन्होंने बताई थी, until date you can see that love in them. So yeah, God bless them. Touch wood. आप म्यूट पे। हाँ जी। So I'll take 2-3 minutes only. One, I think the objective of what you started the program was, do you have any regret in your life which has troubled you now? And I thought the other part was that you may reach any age, you can still do a lot of things which you did not do earlier. Very true. Put it in two forms. My father was a lawyer, my mother was in politics. So first thing, they could not advise me on anything what I was trying to do. So I had no pressure from parents. But when I left Larsen Toubro and joined the Swedish company, they asked me, instead of Calcutta, I'll transfer you to Delhi. And you are a general manager, we'll make you vice president. And I took a decision that I don't want to compromise my wife's profession, because she had started her business. My children were educated here. And I said, whatever the vice president does in Delhi, I'll do it here. So I didn't go for that. And I basically feel that what decision I took was the right decision, because today she earns a lot of money and she's a big businesswoman. So I don't want to throttle my wife's ambition by my own ambition. So one is that. The other part is, Mr. Bhisham had said about why he left mechanical engineering and took electrical, because he couldn't do drawings. I wanted to give him some suggestions. When I was doing mechanical engineering, we also never knew how to draw. So what we did, we got a glass, a square glass. We put a table lamp under the glass and used to put the other person's drawing and topo it, copy it completely. And all of us used to do that, and then the teacher, pin bhi nahi laga hai. So later on we came to find out that the teaching us drawing, वो उसी की drawing थी और उसने भी नकल की थी. So to get along in college is one part. Second,
Some people had regrets about their profession and this what happened. Unfortunately, we are not as mature at that time what we are mature today. I mean, today I'll give you an example. To work in an organization also requires caliber. You don't require to do thuk polish or butter anyone, but you must identify yourself as different from the other people so they'll respect you. Talent cannot be suppressed. It takes a little time only. The other part is, if we had not lived our life, we would not have been a part of the Emoha family. But what this Emoha family has given, I shared some details of a classmate of mine who retired as the Secretary Competitive Commission. Brilliant fellow, he was in the UNO, he gets pension from United Nations as well as from India. And he started a law practice because he said, lawyers ko bahut paisa government deti. So he started a company where he's got youngsters with him. And he's been nominated as one of the best lawyers by the IBJ, which I shared with Somajit and a number of my colleagues on this panel. So you can do anything even at this stage of your life because you got experience, you got maturity, and you got zest. So nothing has stopped. Everything is there. Don't have any regrets. Ek aadmi was walking on the road and he saw a lamp post and he thought it was his wife, so he kissed the lamp post. So ऐसा होता नहीं कि what you think is you are. So no regrets. I mean, I'm very happy of taking a decision of whatever I've done in life. कभी उल्टा नहीं होता. वो हमारी maturity नहीं रहती उस वक्त जब हम decision लेते हैं. God has written already. Absolutely. जो लिखा हुआ है, हमारी तो journey है. We are going across, and I'm very emotional about it. I'm writing on that, and I'll share that with one of us here one of these days. Is आपकी जो journey है वो लिखी हुई है. Enjoy yourself. Spend every moment with each other. You never know how long you are alive. So be prepared for this and think positive. You'll feel happy. Never think negative. So this is a fantastic forum, and I want to say we are so much and we love each other without even meeting each other. I mean, it's an addiction, very powerful. So this is a platform which gives you a trajectory to go anywhere you want. Just have the zest and the focus. Unless you have failures in life, you can never succeed. People who come first class, first all the time, never do well in life. The people, 15% of failures, and let change come into your life. These opportunities will give you further opportunities, which you never conceived or thought at that time. And don't interfere with your children's ambition. Let them do what they want. You should be a facilitator, not a detractor. कि तुम छोड़ के चले जाओगे तो हम क्या करेंगे? No, don't spoil his life. Let him. So I enjoy here. I have no regrets at all. Thank you. Thank you, Avinash. There are two people here who don't have regrets, and they both seem to have done engineering in mechanical as well as electrical. Rest everybody, they do have something in their hearts which they want to pursue, or they wish that they had pursued. So coming to the next person, आशा जी, आपसे सवाल कर सकती हूँ? आशा जी, आप सुन सकती हैं मुझे? ऋतु, मैं एक चीज बोलना चाह रही थी मिस्टर सहाय की बात के ऊपर कि being a man and being a woman at our times was a different thing altogether. आदमी लोग ले सकते थे डिसीजंस, लेडीज या लड़कियां नहीं ले पाती थी हम लोग, चाहे हम करना भी चाहते थे. बिल्कुल, So this is why we have little grudges. Otherwise, life had been very kind and very nice to me. I have no regrets for that. Only thing is कि वो कभी होता है कि आपने इतना कुछ सीखा, इतना टाइम लगाया जिसको, तो छोड़ना पड़ा आपको. That's it. Now the otherwise life I have no regrets. Yes, but generation was different, and yes, now it is, boys and girls are same. They can choose what, and we give them the liberty to do that. Right. So Ritu ji, even I'd like to add one sentence to what Avinash ji और मुना आंटी बोल रहे थे. ये हरिवंश राय जी बच्चन कहते थे कि जो तुम्हारे मन से हुआ तो बहुत अच्छा, तुम्हारे मन का ना हुआ तो वो उसके मन का हुआ तो वो और भी अच्छा. ये फिलॉसफी लेके चलना चाहिए.
बिल्कुल चलना चाहिए, बट हियर वी आर टॉकिंग ऑफ, बिकॉज चाहे मैं कह रही हूँ कि चाहे कोई लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है या कोई आपके बकेट लिस्ट में कुछ कोई आप करना चाहते थे, चाहे वो एक विश थी कि आप डांसर बने या सिंगर बने या आप पेंटिंग कर सकें, या मे बी कोई एक जैसे मैंने कहा आप सपोज इंजीनियरिंग फील्ड में गए, बट मे बी आप डॉक्टर बनना चाहते थे, या मे बी आप कुछ और परस्यू करना चाहते थे. अलग अलग जनरेशन में अलग अलग प्रोफेशंस को अलग तरह से लिया गया है. सो सपोज आप एयर होस्टेस बनना चाहते थे, बट 15-20 years back it was not considered a very good profession. So or even getting into modeling and all is not considered a good profession either for boys. So I'm just saying that कई बार आप कुछ करना चाहते हैं, but because of circumstances आप नहीं कर पाते, या कोई passion follow करना चाहते हैं आप नहीं कर पाते. So this is just to share with each other, and I know we all have made a life here, and we all are happy in whatever we have, and we are carrying on like that, and whatever life has dished out, as we said कि कुछ ना कुछ होता है कि हाँ अगर ये करा होता तो ये तब हम कहाँ होते या क्या होता. सो जस्ट अ प्लेटफॉर्म टू शेयर ऑल दैट हियर. तो अब मैं वापस जाऊंगी. आशा जी, आपसे सवाल था. आशा जी, कैन यू हियर मी? ओके, सबसे पहले तो आप सब लोग बताइए, गेस करिए कि मैं क्या बनना चाह रही होती. आप मुझे देख के क्या सोचते हैं? First, I would want everybody to guess कि मैं क्या बनना चाह रही हूँ. मॉडल, एक्टर, एक्ट्रेस, मॉडल एंड एक्ट्रेस, बॉलीवुड. How well, Rashmi ji, how well everybody has got onto the same thing, Yeah, that's right. So I want to tell everybody that when I was small, I would dream of becoming a fashion designer. But बहुत पता लगाया, कोई कोर्स ही अवेलेबल नहीं था. अब आजकल निफ्ट वगैरह आ गया है, बट पहले बिल्कुल भी नहीं था. ठीक है. So then one second Rashmi ji, I'll just request everyone else to please mute themselves. Thank you so much. हाँ जी Rashmi ji. रश्मि, आप भी शायद म्यूट में हैं. रश्मि जी, you'll have to open up. Sorry. I wanted to become a fashion designer. But उस समय बहुत जगह पता लगाया, there was no course as such where one can become a fashion designer. अब तो निफ्ट वगैरह आ गया है, but previously it was not there. फिर मैंने नोटिस किया कि समर्स में जब हमारी कजिन्स आती थी, बुआ जी की बेटियां और सब लोग आती थी, तो मैं उनको पेड़ के नीचे बैठ के ना पढ़ाया करती थी. और मैं कहती थी कि अगर तुम मुझसे पढ़ोगी तो मैं तुम्हें अपनी इयररिंग्स दूंगी, अपने गॉगल्स दूंगी. So वो इस खुशी में मुझसे पढ़ लिया करती थी. So then I realized that I think teaching is also one thing that I would like to pursue. अब क्या हुआ कि I was a second divisioner always. लेकिन मेरे brother sisters first divisioner थे. So my mom said ये क्या होता है? I said नहीं, I have to pursue my swimming, my skating, my playing guitar at times. वो भी उतनी जरूरी चीज है. तो मैंने क्या किया, what I did to satisfy my fashion designing wish, I learned stitching for 6 months, and I would stitch beautiful clothes. तो मैं जो भी आशा पारेख या माला सिन्हा की कोई पिक्चर देखती थी, तो मैं बिल्कुल वैसे ही ड्रेस कॉपी करके स्टिच कर देती थी. और आज भी मेरे घर के पास जो यंगस्टर्स हैं, हस्बैंड्स हैं, वो कहते हैं देखो आंटी को कितनी अच्छी तरह इस उम्र में ड्रेसअप होती है और तुम लोग ऐसे ही घूमते रहते हो. So I'm still very much interested in getting dressed and all, but after that then I pursued my अच्छा मेरी मॉम ने कहा तुम कभी फर्स्ट क्यों नहीं आई. तो when I was doing my B.Ed, I told my mother ठीक है, इस बार बाकी कुछ नहीं करेंगे, इस बार हम अपना B.Ed में अच्छी तरह पढ़ेंगे. And to my surprise and to my mother's surprise, I topped in the university in B.Ed. And my father said फिर से चेक करो, ये गलत नंबर आपने चेक कर लिया हुआ. It is not possible. क्योंकि हम इतने चीजों में इन्वॉल्व रहते थे, इतने I used to be happy with so much of dancing and things like that. And so this is I learned Kathak. I was a basketball player, but then I also pursued my teaching, and after that principalship and other things. So I don't regret it as such, because I still dress up very nicely, and I still stitch sometimes some things that I want to wear. That's all that I have to say.
Wonderful, absolutely, Rashmi ji. It's nice to know you're so multi-talented. And कुछ आपने किया वो of course आपकी बातों से पता लगता है वैसे भी. But what we realize is that all of us guessed it wrong. Though everybody guessed practically the same thing, but it was wrong. So there's judgment on that. Right. So wonderful. So संगीता जी आप पे आते हैं. मेरी स्टोरी कुछ बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग सी है कि मेरे हस्बैंड ने स्टेट बैंक ज्वाइन किया था एंड ही इज पोस्टेड इन असम. जब हम लोग असम में उन्होंने ज्वाइन किया तो हमें पता लगा कि हम लाइफ लॉन्ग हमें असम में ही रहना पड़ेगा. हम नॉर्थ साइड पे अपने होम टाउन में आ ही नहीं सकते. बहुत कंफ्यूज थे. देन उसके बाद एक वैकेंसी निकली गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया में. एक सिंगल वैकेंसी थी और हमने दोनों ने अप्लाई कर दिया. दोनों ने अप्लाई कर दिया और जब हम इंटरव्यू देने गए तो पता लगा हम दो ही कैंडिडेट हैं. आप डिसाइड कर लो कि किसको जॉब ज्वाइन करनी है. तो हस्बैंड की ज्यादा इम्पोर्टेंट थी तो मैंने कहा नहीं आप ज्वाइन कर लो, मैं फिर आगे ट्राई करूंगी. तो फिर उन्होंने जॉब ज्वाइन किया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया में. हमारी पोस्टिंग कानपुर के पास औरैया एक स्टेशन है वहां पे गैस पाता प्लांट है वहां पे हुई. उसके बाद देन बच्चों के साथ बिजी हो गई. फिर मेरे को लगा कि नहीं उसके साथ भी मुझे कुछ करना चाहिए. देन आई कम इन टीचिंग जॉब में आई गॉट अ परमानेंट जॉब. बट लेकिन 9-10 साल के बाद मुझे वो भी छोड़नी पड़ी क्योंकि मेरे हस्बैंड की ट्रांसफर हो गई मध्य प्रदेश में. तो मैंने छोड़ी लेकिन मेरे को रिग्रेट कभी नहीं है. कभी भी इस बात का रिग्रेट नहीं है कि मैंने वो जॉब क्यों छोड़ी. फॉर द फैमिली, फॉर द हस्बैंड, माय प्रायोरिटी वाज माय फैमिली एट दैट टाइम. लेकिन मैं कभी कभी वो याद आता है कि यार उस वक्त हस्बैंड की जगह मैंने जॉब ज्वाइन की होती तो मैं कहाँ जाकर के मैं भी उनकी तरह जीएम ही रिटायर होती. और मजा आता. मैं अक्सर हम लोग ना दोनों आपस में इस बात को लेके बहुत हंसते थे. मैं कहा अगर मैंने ज्वाइन कर ली होती तो तुम्हारा क्या होता. बिल्कुल मैं इसी बात पे आ रही थी कि थ्रू आउट द लाइफ यू कुड हैव केप्ट टेलिंग हिम दैट यू नो देखो अगर मैंने ये जॉब ना छोड़ी होती तो आई वुड हैव बीन हियर. सो यू ऑलवेज हैड द एडवांटेज ऑफ दैट, राइट? सो वंडरफुल स्टोरी. एंड Ritu, I would like to just take leave. I have a meeting for my society. I am the secretary. So I would like to say bye-bye. Thank you for being here. रितु अब ये प्रोफेशन की बात छोड़ दो, कोई और भी चीज लोगों को बोलो कि अपना रिग्रेट बताएं. मैंने 2 चीजें बोली थी यू नो कि सब कुछ सीरियस नहीं बोलना है और भी बहुत कुछ है अंदर जो बोल सकते हैं. बट पीपल आर प्लेइंग इट वेरी सेफ. सब एक के बाद एक मतलब वही कंटिन्यू करते जा रहे हैं. आई थिंक दे शुड चेंज देयर. शर्मा जी मेरे ख्याल तैयार लग रहे हैं अभी. मेरे ख्याल आई थिंक शर्मा जी को मौका दे दो एक. फौज में ना होते तो क्या होते हैं. फिर से प्रोफेशन पे नहीं जाएंगे. कर्नल शर्मा बताइए. एनी सॉरी कर्नल शर्मा. हाँ जी. Regrets only. In fact, it's thankfulness to God and destiny. Can't hear you. आपकी आवाज नहीं आ रही है कर्नल शर्मा. There are no regrets, frankly. And मैंने एक गाना तैयार किया हुआ जबरदस्त. आज वो 6:15 बजे सुनाऊंगा. If you permit. If you permit. याद नहीं है. चलिए सेशन को खत्म करते हैं. हाँ तो इनको गाना सुनाने की अपॉर्चुनिटी मिल गई है. 6:30 बजे पक्का इनका नाम आएगा. 6:30 नहीं 6:15. चलो चलिए. मिस्टर भट्टाचार्य बहुत शांत बैठे, मैं उनसे पूछती हूँ. मिस्टर भट्टाचार्य. Mr. Bhattacharya तो बहुत ही he is very humble and he doesn't want to speak, but on his behalf I will tell about him
that his childhood, he was brought up in a very poverty, and they were 10 brother and sister only. And his father was a schoolmaster. When he was 9 years old, he expired, and only earning member was his elder brother, who is also was in a government job. So his mother told him, all the other children, that he is the father. How can he manage so many things? So don't ask for any matlab ye chahiye, wo chahiye. Never he has asked. Even in Durga Puja, he never used to get a new dress. He used to get only the elder brother's get, which will become his size now. So that way he brought up, and he got first division in his school, and he was got admission in electric, physics, mechanical, all the engineers, but they were very costly, and their brother will not be able to afford that. So he had to take textile engineer, but it was a blessing in disguise, because he was considered as the #1 textile engineer in whole of the world. So World Bank actually offered him job. Before that, he was a managing director of textile, and he had 100 National Textile Corporation. At the age of 42, he came in the paper that youngest managing director, and and he had 100 in the public sector, and he was actually under him 125 6 textile mill. So Rajiv Gandhi actually was there that time, and Mr. BP Singh, that they were given, they gave all the charges to him, and he started exporting clothes, and that way the 6 textile mills was little in a better condition. That was the best period of textile NTC. And then he became managing director, and then World Bank came to know about him. They offered him one day, and I was in a hospital for gallbladder operation. He came in the mornings and told me that I am offered, and can I go? I said sure, because as it is managing director post is only for 3 years. So then he got all the clearance from the government that he was a very honest, and all the character certificate and everything was done, and he went to, that was required. That was required actually, and he went to World Bank, and he went to the main all over. He was the only textile man in the whole of the world, so he was to go many places. And then when he came back in 1997, he has to come back. He took voluntary retirement. He had a brain hemorrhage. He fell down in the airport. And then when he came, he was, before that first job was Delhi IIT. Then when he came back from USA, he was offered from Powai, the institute, that IIT institute. Then after that, 3-4 years in the Coimbatore, they introduced a new management institute, introducing textile as a new subject, and there he introduced the textile as a new subject. So, and then he joined here. He actually from the scratch he made that MBA Institute of Jaipur's Institute of Management. So he was in the introducing the subject and the textile and Jaipur's finance and his effort, and that it is in Ghaziabad. Chairmanship. He gave the chairmanship. Even now, even after, he has just crossed 8, but they have not left him. They are even he is one of the board of directors, and he sits there. And they said, we will be honored if you join us. So they have not left him even now. Wonderful. Wonderful. So it was a blessing in disguise. Though he could not, like a tabla, even if a tabalchi becomes a first great tabalchi, then it is a really very prestigious and very nice profession. That way he has also could not do that electrical engineer, mechanical engineer because of the money. But in a textile, it was a blessing in disguise. So he achieved the first first position in this
in this field. So I almost tell him, and that he could, though his mother was very upset that, and even in PhD in US in England, Manchester, he did PhD. People do in 3 years, 2 years MS and 1 year PhD, but he did in 2 years. And they offered that, what do you want if you are offered to job, if you want to stay here. But he told, no, I will go back. My brother has brought him, I want to serve him. And he sacrificed it, and they came back and took hold of the family, that. But Mrs. Bhattacharya, wonderful to know that you've done so much, and very proud of despite all the adverse situations. Responsibility, and he sacrificed. Of getting but Mr. Bhattacharya, going in abroad as well as in India. But because of family reasons, I never took. It never occurred to me that position is important. Wonderful. Family life was more important to me point of the time. Yeah, So I have no regrets that way. But in my life, I can say that as a textile man, I reached the very top, and in the world across the world, the meetings, I was always included, and I was a major speaker during those days. That was a great satisfaction for me. Wonderful, Mr. Bhattacharya. To have worked in the World Bank in the. Thank you, wonderful. Wonderful. I have no regret that way. And also during my working days, I became the managing director and chairman of National Textile Corporation, from where I retired at the request of World Bank to join them. So I left the National Textile Corporation as the chief man to join the World Bank, and then I went from here to there and had an opportunity. Wonderful, thank you so much, Mr. Bhattacharya. Coming to Mrs. Sehgal, आप बोलना चाह रही थी कुछ? Mrs. Sehgal? मुझे लगता है मदन जी ने की इच्छा रही होगी कि हम अपना जिम खोलो कोई। मदन जी से तो कराओ। मदन जी पे आएंगे अभी आएंगे। रीटा जी पहले आपसे सुनते हैं, then we will go to मदन जी। आप म्यूट पे हो। हाँ जी। हाँ जी। ऐसे लाइफ में रिग्रेट्स तो नहीं है, but yes, little regrets came in different phases of life, like in childhood also, then in young age also, after marriage also. But I think if you understand your weaknesses, I think these regrets become your strength. And this happened with me also when I was in my 4th class, or 4th or 5th. So I realized that I sing very well. So once we went for a picnic with our school, with our class. So one of my teachers, he said कि you sing so well. वहाँ गाना गाया सब friends के सामने. So my physics teacher, he said, you call your father tomorrow. I want to speak to your father because you sing so well. You should learn music. So I went home. I told my father, Dad, my physics teacher is calling you. He said, for what? I knew for what, but I didn't tell him. And when he went to school, my teacher said, your daughter sings so well. इनको music सिखाइए. So my father started scolding him. He said, आप स्कूल में ऐसे बच्चों को से बात करते हैं, हमारे घर की लड़कियां गाना नहीं गाती हैं. And music नहीं सीखा. But yes, at that time I felt bad कि dad ने मुझे music नहीं सिखाया, but मैंने सीखा. When I was free from all my duties, बच्चे बड़े हो गए, I learned vocal music. So इतने सालों के बाद जो regret था वो खत्म हो गया. And I used to sing a lot of songs in weddings and all. अपना पूरा जैसे इच्छा पूरी कर लेती थी, जहाँ पर कहीं स्टेज पे गाने को मिलना, स्टेज पे भी गाना गा लेना, जब भी मौका मिला.
डैड तो घर में है, डैड तो देख नहीं रहे तो जहाँ मौका मिले वहाँ गा लेते थे. Then I got married, तो बहुत मन करता था कि I am an educated woman, what am I doing, washing clothes and बर्तन and बच्चा and all, so I should do something, this is not for me. And पढ़ाई लिखाई भी सब खराब हो गई यहाँ पे. And Mr. Sehgal used to say, तेरे बस का कुछ नहीं है, तेरे बस का कुछ नहीं है. So I think that pushed me one day. And I went to with Rashmi. Rashmi was a counselor in a school, and one day I just went with her. और वहाँ पे the principal of the school came, and we were just chatting. After 15-20 minutes, said, Rita ji, why don't you come and join me? So एकदम से लगा, oh, still after 19 years of marriage, still I can do something. So वो जो regret था, उसका मौका आया. I said, I want to go out for a job. My husband said, no. बच्चों को कौन देखेगा? बच्चे तो बड़े हो गए, अब एक तो कॉलेज में चला गया. And I went for a job. Every day when I used to come back home, तो आदत तो थी नहीं, 19 साल से तो घर बैठने की आदत थी. तो मिस्टर सहगल कहते थे, थक गई ना, तेरे बस का कुछ नहीं है, तेरे बस का कुछ नहीं है. And that again they used to push me, and really I used to say, कल नहीं जाऊंगी, बस क्या करना है नौकरी वोकरी करके, सब कुछ तो है, मैं नहीं जाऊंगी कल. लेकिन फिर धक्का पड़ता था घर से, तेरे बस का कुछ नहीं है, तेरे बस का कुछ नहीं है. And that pushed me. And उसके बाद I worked for about 5-6 years in Mother's Pride School, and got a lot of name, fame. मतलब जो कुछ भी मन में था, जो regrets थे, इतना name fame मिला, खूब पैसा मिला, सब कुछ मिला, वो पूरा हो गया. After 5 years, I just wrote my resignation and went to the principal and said, now I'm leaving. She said, no, you can't leave. हमारा school आपके सिर पे चलता है. मैंने कहा, नहीं, school सब चल जाएगा. This is not for me. And then luckily I got an opportunity to work in an NGO, and I started doing social work. And from last 15 years, I'm so satisfied doing that social work and working for old people. Thank you so much. Wonderful. कुछ भी अगर ठान लीजिए. ठान लिया, बस जब ठान लेते थे तो कर ही लेते थे. But मैं स्टोरी की ब्यूटी बता. What happened to Mr. Madan जी? मदन जी रेडी है. अनम्यूट नहीं, मदन जी अपना अनम्यूट नहीं कर रहे. हाँ जी मदन जी, आपके मन में कोई रिग्रेट, कोई कसक जो आप करना चाहते थे? बहुत ही मन गाना सुनने को कर रहा है, मेरा गाना सुनने को बहुत मन कर रहा है. आप तो पेंडुलम लग रहे हो, पेंडुलम्स हो आप सब, पेंडुलम्स के बीच में फंस गए हो. गाना सुनाओ. पास्ट फ्यूचर पेंडुलम. एक्चुअली सुन रहे हो मेरे को? सॉरी फॉर सेइंग. ऐसा डिप्रेसिंग सा टॉपिक ना लिया करो शाम को. नेक्स्ट टाइम हम बिल्कुल अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे मदन जी. आप जरूर सजेस्ट करिए, we will definitely follow that. पेंडुलम बन गए, पेंडुलम, all are pendulums. चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. बट आप अपनी मन की बात बताइए. अगर आप अपना पास्ट नहीं तो फ्यूचर क्या देखते हैं, क्या आपके मन में है? पास्ट सुनाओ, फ्यूचर सुनाओ. मैं दोनों सुना सकते हैं. आपके मन में जो भी आप बोल सकते हैं, जो भी आपके मन में है. जैसे मेरा मन बहुत ही कर रहा है, आप मेरे को प्रेजेंट में रहने का तरीके बताओ, कौन से अच्छे हैं. एक तो आपका हुआ है जिसमें आपने पास्ट आज ऑन कर लिया है. प्रेजेंट से आप पास्ट में चले गए हो. पास्ट सुनाओ तो पास्ट सुन लो मेरा. आप जल्दी से जो सुना देंगे मदन जी. मैं एक अच्छी फैमिली में जन्म लिया. आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड. अगर गॉड है तो मैंने शेरवुड में स्कूलिंग की, नैनीताल में. उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से MA की, फिर लॉ किया. वहां पर मेरे को, क्योंकि मैं यंगेस्ट एक ही लड़का हूँ, घर से पैसे खुले मिलते थे, घर वालों ने मेरे को पढ़ने भेजा. मैं 70 सेक्टर में पहले हाफ पीता था. फिर कसौली को मेरे को एनफील्ड मोटरसाइकिल लेके दिया. कसौली जा करके मेरा रुकता था, एक बोतल पी के मैं रुकता था, जिससे अब मरने से मेरे को बहुत डर लगता है. रास्ते में टिम्बर ट्रेल भी आता था. उसके बाद मैं ऊपर जाके रुकता था. एक डक्का नहीं मैंने दुनिया का तोड़ा, आज तक कोई काम नहीं किया मैंने. आज भी मैं बहुत खुश हूँ. मेरे को कोई रिग्रेट नहीं. जो आदमी रिग्रेट करके डेथ बेड पर जाए, उससे गलत आदमी कोई नहीं. I have no regret. Wonderful to know that Madan ji. आप खुश हैं. I take life as it comes. I take life as it. I take life tomorrow. I take it as it comes. मेरे को कोई फ्यूचर की प्लानिंग ज्यादा नहीं करता मैं.
मैं प्रेजेंट में रहना का तरीका सीखता हूँ, प्रेजेंट में कैसे रहा जाए। एक तो होती ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसका मैंने आपको बता दिया। जो आप कहते हो श्री रविशंकर, सो हम लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, सो हम सांस रोको सांस खींचो। उसके बाद एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि बीमार ना हो, क्योंकि पहले हेल्थ है और वेल्थ साथ ही चलती है। इसको हेल्थ और वेल्थ, और खुशवंत सिंह को पढ़ लो, उसके 10 रूल्स पढ़ लो, बड़े अच्छे लिखे हुए हैं खुशवंत सिंह के। बड़ा मजा आ रहा है जिंदगी का, बड़ा लुत्फ आ रहा है। ऐसे डिप्रेसिंग टॉपिक शाम को ना छेड़ा करो, क्योंकि आपकी चाय की बात है, चाय की ये होती है गिलासी के साथ। चढ़ दिया गला करेगा, चढ़ दी चक लागे इतना डिप्रेसिंग ये टॉपिक ना छेड़े। डेफिनेटली इस बात को मैं सेकेंडली आई आल्सो एंडोर्स व्हाट केशव जी आल्सो सेड कि हम लोग जब बात करते हैं तो अंदर जो मन में होता है हम हर बार शेयर नहीं करते, हम उसको कवर अप करते रहते हैं। तो क्या बट एटलीस्ट लाइक आई विल टेल यू अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट व्हिच आई आल्सो डिडंट नो। लाइक आप सब यहाँ मेंबर्स हैं, आपको मालूम है कि जैसे हमारे रिलेशनशिप मैनेजर्स आप लोगों से बात करते हैं, एंड देन एवरी सैटरडे हम लोग आपके बच्चों को एक अपडेट भेजते हैं, वीकली अपडेट, कि एक हफ्ते में हमने आपके पेरेंट्स से जो बात करी वो क्या बात हुई, क्या हुआ। सो मैं अपना एक इंसिडेंट बता रही हूँ जब मुझे बिकॉज मेरे पेरेंट्स भी मेंबर्स हैं, एंड तो मुझे जो अपडेट आया तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था मेरी मदर के बारे में कि आपकी मदर से ये बातें हुई। एंड उसमें कहीं पे एक जगह लिखा हुआ था दैट उनका बचपन ऐसे बीता और वो एक टाइम पे डॉक्टर बनना चाहती थी बट बन नहीं पाई, एंड देन उनके बाद शादी हो गई, वो वहाँ से इंडिया आ गई एंड ऑल दैट स्टफ। सो मुझे ये देख के बड़ी हैरानी हुई कि मैं आई एम एट दिस पर्टिकुलर एज एंड आई डिड नॉट नो दिस अबाउट माई मदर, बिकॉज हम अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और कभी हमने पूछा ही नहीं कि मम्मा आप क्या करना चाहते थे या आपने क्या सैक्रिफाइसेस करी। एंड ऐसे ही मैं अपने फादर, जो मेरे फादर अपनी हिस्ट्री लिख रहे हैं, तो उसमें उन्होंने बहुत कुछ अपनी बचपन की बातें लिखी, कैसे वो इंजीनियरिंग करना चाहते थे बट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस ही ड्रॉप्ड आउट एंड देन ही जॉइन्ड द डिफेंस सर्विसेज एंड ऑल दैट एंड हाउ ही वांटेड टू डू दिस। सो लॉट ऑफ थिंग्स केम आउट एंड ही सेड मैंने ट्राई करा। उस टाइम मुझे पहली बार, माय फादर इज 78 years old एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई केम टू नो कि हमारे पेरेंट्स की भी कुछ इच्छाएं थी जो उन्होंने शायद कहीं दबा दी एंड कहीं पे उसकी बात नहीं करी। एंड एज चिल्ड्रन वी नेवर एवर बॉदर टू फाइंड आउट बिकॉज पेरेंट्स वर जस्ट पेरेंट्स, यू नो। तो ऐसे ही मुझे लगा कि हम सब के अंदर कोई ना कोई बात है जो हम करना चाहते थे, चाहे वो हंसी मजाक में उड़ाए, चाहे हम कुछ बनना चाहते थे पर हम बने नहीं। सो आज बस एक ऐसे ही इसलिए ये सेशन था कि अपने दिल की बात हम एक दूसरे को हम समझ पाएं। एज फ्रेंड्स, एज फैमिलीज, हम अपने आप को मोहा फैमिली कहते हैं, बट ये जो अंदर की बातें होती हैं ये हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं, समझाती हैं, एक पर्सन को अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाट इज बिहाइंड अस। हम आगे सब हंसते हैं बट पीछे हमारे अंदर क्या है ये समझने के लिए। जैसे मुझे भी बहुत कुछ आज पता लगा बहुत सारे लोगों के बारे में, बहुत लोग अपनी स्टोरीज नहीं बता पाए, फिर कभी किसी और दिन, बट दैट वाज द एम दैट हम सब एक दूसरे को समझ सकें, एक और क्लोज बॉन्डिंग, एक क्लोज रिलेशनशिप बना सकें एंड एक दूसरे के साथ जैसे हम फ्रेंड्स के साथ सब अपने दिल की बातें शेयर करते हैं, हम अपने बच्चों को शायद नहीं बोलते और अपनी बहुत सारी इच्छाएं हम लोग दबा चुके हैं, बट आज एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम ये सब आगे कर सकें एंड हम लोगों को बढ़ावा मिलता है। हमारे फ्रेंड्स जब कहते हैं, जैसे प्रवीण जी को सब ने बोला अब क्यों नहीं करती हो तुम, या जैसे रीटा जी ने कहा कि मैं ये करना चाहती थी, मैंने करा, बट अब मैं एनजीओ ज्वाइन कर चुकी हूँ एंड आई एम डूइंग समथिंग विद माय लाइफ। सो listening to each other, we can do something and at least follow what we left behind so many years back. But maybe there's another way to do it. Ritu, before you leave, you made everyone talk, but we want to also know about you, not about your mother. Can you now, in few words? I will speak about it next time when I join. Very you. nice, Avinash ji. Actually, Ritu ji, you must. We must hear this. I think I will have to take a full session on myself. So next time, it is 6:35. It is 6:35. रितु, हम लोग की स्पीचेस होंगी तुम्हारे लिए भैया, उस दिन तो 2 घंटे का होना चाहिए
सेशन, क्योंकि एवरीवन विल स्पीक फॉर यू। जिस दिन हम लोग फाइनली जिस दिन हम लोग मिलेंगे मैं उस दिन बहुत कुछ शेयर करूंगी, बट आज इजाजत चाहूंगी बिकॉज़ 6:30 हो गया एंड आई वुड नॉट लाइक टू क्रॉस द डेडलाइन ना अपनी भी डिजायर्स को। नहीं, मैं जरूर बताऊंगी नेक्स्ट टाइम पक्का से। टिल वी मीट टुमारो। जिसने हमारा वीडियो बनाया है वो मैडम भी इमोहा की ही मेंबर है, ये बताना चाहते हैं। हाँ जी, नीलम सबको पता है, नीलम चतुर्वेदी जी इस प्लेटफॉर्म पे आई हुई हैं, उन्होंने एक सेशन भी लिया है, आप थे उस सेशन में। सो पर वो मेंबर है, ये हमें भी नहीं पता था, अभी बाद में पता चला। राइट, but Ritu, we are all very clear that your topic was not feeling bad about something. Yeah, no, not at all. बहुत अच्छा था रितु जी, बहुत ही अच्छा था टॉपिक। We have lived our lives so nicely, enjoyed everything. It was we don't know also that if you had not adopted this and many regrets and the other, you may not have succeeded. ये तो life का principle है. We're not talking about our past. We're talking about how you can do something even now. We could have done something, which थोड़ा डाइवर्ट तो हुआ, थोड़ा तो हुआ। कोई बात नहीं, उनका कुछ और था, मोटिव कुछ और था, लेकिन थोड़ा डाइवर्ट हुआ। कोई बात नहीं, ये भी सब दिल की बातें हैं, तो ये भी सामने आई, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम किसी और तरीके से इसको लेंगे। चाय पे चर्चा हम करते रहते हैं, so नेक्स्ट टाइम बहुत टाइम है हमारे पास, we will definitely do that। so अब कल सुबह मिलेंगे हम लोग। हाँ जी, अब कल सुबह हम लोग मिलेंगे। मौका देना, मुझे भी मौका देना, मैं भी बताऊं। मैं बहुत कुछ बनना चाहती थी, लेकिन मैं अब खानसामा बन के रह गई। अच्छी सी स्टोरी मेरी भी है। मुझे चाय भी बनाने नहीं आती थी, लेकिन बहुत स्पेशल खाना मैं कम से कम सामान में, कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा बनाती हूँ। बहुत कुछ करना चाहती हूँ। बिल्कुल, हम नेक्स्ट टाइम हम लोग डेफिनेटली लेंगे। अन्नपूर्णा सुखी भव, जो खाना अच्छा बनाना है उससे अच्छा और क्या चीज चाहिए। ऐसे बिल्कुल सही है, जो किया भगवान ने किया, अच्छा किया। और मैं भारत के राज परिवार से बिलोंग करती हूँ। महिमा जी सॉरी, टाइम हो गया है, सॉरी महिमा जी, हम नेक्स्ट टाइम सुनेंगे। प्रवीण जी, we will take it next time, बताएंगे। So हाँ जी, 6:40 हो गए। I'm so sorry, I need to cut short everyone and we need to end, and we will meet tomorrow morning at 8 o'clock sharp for a physiotherapy and 12 o'clock for a dietitian for the doctor's show, and evening for the dietitian show. So till then, please do not regret. Just be happy with your life. No, we are. And follow what you have done. मेरी आशीर्वाद और दुआएं। Very good session, बेटा रितु, मेरा आशीर्वाद और दुआ तुम ऐसे ही स्वस्थ, प्रसन्न और चमकती सुंदर सी बनी रहो, और हम लोगों से मिलती रहो। Thank you so much, and see you all tomorrow. Bye bye. Bye. Bye everyone. Thank you.